Welcome back to Adroit. So in this video we will be covering the features, problems and policies of agriculture sector. So what are the policies, how is our agriculture sector, what are the problems which are being faced, and what are some of the policies and reforms which have so far been introduced in agriculture sector. So this is presented by me, Garvit Saini. Let's go ahead with the video now. So first of all, let us look at the content we'll be covering in this video. First of all, we'll be understanding the importance of agriculture sector. What importance, what role does agriculture sector play in Indian economy? Second is features. What is the status of agriculture sector in India? What are the problems being faced in Indian agriculture? And then what are the reforms which have been introduced? So there are technical reforms, there are institutional reforms, and there are some general reforms which have been introduced in the past years in Indian agriculture sector. So, and thereafter we have achievements of reforms. So what are some of the points which indicate that these reforms or these policies have been a success or achievement in India? And thereafter we'll be studying what are the limitations of these reforms. So these reforms had a great impact over the productivity of Indian agriculture, so we call it green revolution. So what were the limitation of these reforms or the limitation of green revolution? So now we have importance of agriculture sector कि आखिर agriculture sector क्या role play करती है इंडिया में. So the first point indicates at contribution to GDP. We know, guys, that agriculture sector has had a great contribution in the GDP of our country. Let us look at some of the facts in this point. In 1950-51, we had a GDP contribution of around 51% in Indian agriculture, in Indian economy, whereas in the year 2018-19 we have a contribution of around 18% in Indian economy by agriculture sector. So now you must be thinking that the contribution of agriculture sector has reduced during the course of these years. So this is not because the productivity of agriculture has reduced, but this is because the tertiary sector and secondary sector has started contributing so much in the Indian economy that the contribution of agriculture sector has been overshadowed by these two. So it is not because that agriculture sector has that the production or productivity in agriculture sector has reduced, but this is because the increased contribution of secondary and tertiary sector have overpassed the contribution of GDP by agriculture sector. Next point is supply of wage goods. तो wage goods क्या होते हैं? Wage goods वो goods होते हैं जो कि necessities of life होते हैं, कि अगर आप एक daily wage earner भी हो तो भी आपको खरीदने ही पड़ेंगे. तो wage good वो होते हैं which are necessities of life, जो कि जरूरी है जीने के लिए. सो आपको पता है ये एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो कि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल ग्रेन्स, ऑयल, सीड, ये सारी चीजें जो नेसेसिटी है हमें जीने के लिए, जो अनिवार्य है जो चीजें, वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट भी देता है. देखते हैं कुछ फैक्ट्स की तरफ. इंडिया की जो 50%, मोर देन 50% पॉपुलेशन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर डेली वेज, फॉर देयर डेली सर्वाइवल, फॉर देयर सर्वाइवल. मतलब ये है कि हमारी आधी से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंट है. उन्हें एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को. फॉर एग्जाम्पल कॉटन. Cotton is a raw material used by industries to produce fabric or textile used by industries. तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड करता है. फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, इनकी डिमांड कौन करेगा? नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. तो आपको पता है व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल ट्रेड में. लगभग हमारा जो कंट्रीब्यूशन है रिसेंट ईयर्स में वो है लगभग 12%. लगभग हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 12% कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में. जैसा कि हम जानते हैं कि 2018-19 के ईयर में हमने जो एक्सपोर्ट किया था उसके अंदर 11.76% जो था हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था. नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जैसे ग्रेन्स, ऑयल, सीड्स, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोड्यूस होता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी जरूरी होता है. ये दूसरी जगह पहुंचाई जाती है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं.
कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा सहारा मिल रहा है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेल्थ ऑफ द नेशन। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो वेल्थ ऑफ द नेशन। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत सारा रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल लैंड इज ऑल्सो एन एसेट। तो आपको पता है एग्रीकल्चर में कितनी ज्यादा लैंड होती है, बहुत ज्यादा एरिया हमारा अंडर कल्टीवेशन है, तो वो जो लैंड है वो भी तो एक एसेट ही है। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो द वेल्थ ऑफ द नेशन। So after understanding the importance of agriculture in India, let's move to the features of agriculture in India. कि आखिर इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी स्थिति क्या है। So these are some of the points. So the first point is low productivity. तो productivity, so the first question which comes is what is productivity? So productivity is output पर हेक्टेयर, कि आखिर एक हेक्टेयर की लैंड में हमारा कितना आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो अब हम लोग कुछ फैक्ट्स की ओर देख लेते हैं, वेयर वी आर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज विद इंडिया। अब इंडिया का जो राइस का केस देखते हैं। सबसे पहले इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो है 3.6 टन ऑफ आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, वेयर एज चाइना इज वेरी वेरी अहेड ऑफ अस विच इज 6.8। वियतनाम भी हमसे बहुत आगे है 5.8, और हम वर्ल्ड एवरेज से भी बहुत नीचे हैं। वर्ल्ड एवरेज इज 4.5 टन ऑफ आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, वेयर एज इंडिया स्टैंड एट 3.6। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो प्रोडक्टिविटी है राइस के केस में वो कितनी कम है। सिमिलरली यू कैन कंपेयर इन केस ऑफ वीट में हमारी प्रोडक्टिविटी है 3.1, चाइना की है 6.5, यूके की है 9, और वर्ल्ड एवरेज से भी हम नीचे हैं, वर्ल्ड एवरेज है 3.3। In case of maize also, India stands at 2.6 tons of output per hectare of land. China is at 5.8 और USA बहुत आगे है 10.7, और हम वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे हैं, वर्ल्ड एवरेज इज 5.6, whereas we are at 2.6 tons of output per hectare of land. तो इस समय ये पता लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आज के समय में भी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। Next point is disguised unemployment. So what is disguised unemployment? Disguised unemployment refers to having more number of people employed than what is actually required on a piece of work. कि for example in case of agriculture, जितनी हमारे में एक पीस ऑफ लैंड पे जितनी एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, हम उससे ज्यादा जो है हमारे एम्प्लॉयज वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। मीन्स अगर मैं इसको आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब ये है कि जितनी जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में उससे भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, विच इज लीडिंग टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब जितनी लोगों की जरूरत है एक काम में उससे ज्यादा लोग हम एम्प्लॉय कर दें, तो उसे कहते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने लोगों की जरूरत नहीं है जितने लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। Even after many decades of independence, we are still dependent on rainfall. So rainfall is very uncertain, which makes our agriculture sector too uncertain. तो rainfall बहुत uncertain होती है, और हम आज भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो कि हमारी जो प्रोडक्शन है हर ईयर का उसको भी बहुत अनसर्टेन बना देता है, उसको भी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर बना देता है। सो वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल इवन आफ्टर टू मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। देन वी हैव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग तब होती है जब हम बेचने के लिए नहीं बल्कि खुद के गुजारा करने के लिए क्रॉप्स उगाते हैं। आज भी इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहां पे लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, जहां लोग केवल खुद के लिए खुद कंज्यूम करने के लिए फसल उगाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे क्योंकि वो बेचते नहीं, उनके पास पैसा नहीं आता, तो वो गरीब रह जाते हैं। इससे आती है हमारी एग्रीकल्चरल पॉवर्टी। अभी एग्रीकल्चर पॉवर्टी कैसे आती है कि ये लोग बेचते नहीं है, सब्सिस्टेंस के लिए केवल खेतों में उगाते हैं अनाज, जिसके कारण उनके पास जो मनी है वो कमाता है, इनकम उनकी कम होती है। इसके कारण वो अपने खेत को मॉडर्नाइज नहीं कर पाते। ये लोग अपने खेत को मॉडर्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि ये अपनी जो फसल होती है वो बेचने के लिए नहीं बल्कि खुद कंज्यूम करने के लिए उगाते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। तो अगर हम मॉडर्न इनपुट की बात करें तो आज के समय में भी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उसको यूज करके एग्रीकल्चर नहीं की जाती। इस वजह से क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम रह जाती है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इंडिया की लो प्रोडक्टिविटी है। वो क्यों है? क्योंकि वी डू नॉट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वी डू नॉट यूज मॉडर्न इनपुट्स टू ग्रो क्रॉप्स। तो इस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस को उगाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है
बहुत केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, कि इतने भाग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालें और इतने भाग केमिकल फर्टिलाइजर डालें तो बेस्ट प्रोडक्शन हमारे पास आएगा राइस का। लेकिन जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आज भी बिल्कुल सही प्रोपोर्शन नहीं यूज किया जाता। कई बार लोग बहुत इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है जो कि प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं। असल में एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन का यूज होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, एक स्पेसिफिक जो कि निर्धारित प्रोपोर्शन होता है वो ऑर्गेनिक का और एक निर्धारित प्रोपोर्शन केमिकल फर्टिलाइजर का। सो वी कैन से दैट केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट जुडिशियली यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल होल्डिंग्स। आज भी जो हमारे जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो खेत है वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। अब इससे होता क्या है, जब एग्रीकल्चर जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है तो इससे दो चीजें आती है। नंबर 1, नो मैकेनाइजेशन, नो मॉडर्नाइजेशन, कि जो हमारे जो जब छोटे छोटे जो खेत होते हैं उसको उसके अंदर आखिर हम ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स का यूज कैसे करें, क्योंकि जगह ही बहुत कम है कि ट्रैक्टर उसके ऊपर नहीं ढंग से काम कर सकता। सेकंड, इससे क्या होता है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के लिए, होल्डिंग से क्या होता है, स्मॉल होल्डिंग से कि जो लोग होते हैं वो कमर्शियल खेती नहीं करते, वो सब्सिस्टेंस करते हैं, सब्सिस्टेंस के लिए खेती करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। जैसा कि ये वाला पॉइंट हमने देखा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये क्यों होता है, इस क्योंकि बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है हमारी जमीन। क्योंकि जब छोटे, ऑब्वियस सी बात है, जब छोटी सी जमीन होगी तो लोग उसके ऊपर उगी हुई फसलों का यूज बाहर बेचने के लिए नहीं बल्कि खुद कंज्यूम करने के लिए करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंडलॉर्ड टीनेंट कंफ्लिक्ट। तो आज भी इवन बहुत सारे सालों के बाद इंडिपेंडेंस के, आज भी हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं और टीनेंट्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट है। आज भी जो हमारे टेनेंट्स हैं जो कि जमीन के ऊपर खेती करते हैं उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। टेनेंट्स आर एक्सप्लॉयटेड। इसका मतलब ये है कि हमारे जो रिफॉर्म्स हमने जो लाए हैं, लैंड रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स, वो बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं बहुत सारे इलाकों में। तो आज भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का कंफ्लिक्ट सुलझाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। इवन आज भी हमारे जो देश में है वो बहुत ज्यादा ऐसी जगह है जहां पे आज भी जो हमारा जो खेत जोतने का काम होता है वो ट्रैक्टर से नहीं बल्कि बैलों से किया जाता है, बुल से किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है। तो वी आर स्टिल यूजिंग प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ साइंटिफिक एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। So these are the points of features of agriculture in India. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि आखिर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है जिनके ऊपर गवर्नमेंट और लोगों को काम करने की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी भी बहुत ज्यादा हद तक रेनफॉल डिपेंडेंट है। तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। वी ऑल नो कि उसको जब एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करते हैं तो फाइनेंस की जरूरत होती है। तो जो फाइनेंशियल तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर फाइनेंस की बहुत ज्यादा कमी है। किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी एग्रीकल्चर की अपनी वो लैंड को मॉडर्नाइज कर सकें। और क्यों ऐसा क्यों होता है कि उनके पास कम फाइनेंसेस हैं? उसका कारण ये है कि आज भी जो फार्मर्स हैं वो फाइनेंस के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? जो एक इंस्टीट्यूशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल महाजन्स, वो आज भी महाजन से लेना पसंद करते हैं फाइनेंसेस, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट होता है, हाई इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट के कारण जो फार्मर्स, जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर फाइनेंस की बहुत ज्यादा कमी है। और ये हाई इंटरेस्ट रेट के ये क्योंकि ये महाजन हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं कंपेयर टू बैंक्स, इसलिए फार्मर्स को ये बहुत महंगा पड़ता है महाजन से लोन लेना। लेकिन फिर भी ये लोग महाजन से ही लोन लेते हैं, बैंक से नहीं लेते, जो कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ को बहुत ज्यादा हिंडर करता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर मुश्किलें खड़ी करता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वेंशनल आउटलुक, कि हमारे यहाँ पे असल में बहुत ज्यादा इनोवेटिव ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम लोग फार्म में कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा कन्वेंशनल मेथड्स यूज होते हैं। इस वजह से भी ये भी एक एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज भी हम लोग इनोवेटिव और न्यू साइंटिफिक मेथड्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं यूज कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। एज डिस्कस्ड इन अर्लियर स्लाइड्स कि जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत छोटे छोटे लैंड्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी कम होती है,
प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसकी वजह से मॉडर्नाइज नहीं हो पाता, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि छोटी सी लैंड के अंदर कैसे मॉडर्नाइज करेंगे, कैसे उसके अंदर ट्रैक्टर्स का या हार्वेस्टर का यूज करेंगे। और ऊपर से स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग के कारण ही हमारे यहाँ के जो फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ज्यादा करते हैं कि छोटा सा खेत है तो उसके अंदर खुद के कंजम्पशन के लिए फसल उगाते हैं, बेचने के लिए नहीं उगाते। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, अ मेजर प्रॉब्लम, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीरियन रिफॉर्म्स। जैसा कि हमने उसके अंदर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि जो टेनेंट्स होते हैं और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, इकोनॉमिक गैप होता है, और जो टेनेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं बाय लैंडलॉर्ड्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो आज तक भी उसमें जो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट्स के बीच में जो रिलेशन है दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव, वो एक्सप्लॉयटेशन करने वाला है, वो टेनेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है। ऐसे रिलेशन है लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज़ादी के इतने सालों बाद भी, इतने दशकों बाद भी बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। जो यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो अपना सामान एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बेचने की बजाय मनी लैंडर्स को बेचते हैं, जो कि है महाजन्स। महाजन से जैसे हमने पहले बताया था कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, तो वो उससे उधार लेते हैं और जो महाजन होता है बदले में उनका सारा जो होता है आउटपुट वो खरीद लेता है। ये शर्त होती है, ये महाजन ये शर्त रखते हैं कि जितना भी तुम लोग अपनी फसल उगाओगे वो तुम्हें महाजन को बेचना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उन्हें कम पैसों में महाजन को बेचना पड़ जाता है, जबकि वो ज्यादा पैसों में मार्केट में भी बेच सकते हैं। वो मार्केट में सामान नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि वो महाजन से मनी उधार ले लेते हैं, इस वजह से उन्हें महाजन को ही बेचना पड़ता है, वो भी कम दामों में। तो इसलिए भी हमारा जो मार्केट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। फार्मर्स आज भी महाजन को अपना आउटपुट सेल कर देते हैं कम प्राइसेस में, जबकि मार्केट में सेल नहीं करते। So moving on to the next point, now we will be covering some agrarian reforms which have so far been introduced in agriculture sector. तो हमारे यहाँ पे टेक्निकल रिफॉर्म्स हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल यानी कि लैंड रिफॉर्म्स हो चुके हैं, और कुछ जनरल रिफॉर्म्स हो चुके हैं। तो अब हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल रिफॉर्म्स, देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड देन जनरल रिफॉर्म्स। So in technical reforms, we have HY seeds, which is the first reform. So what is HYV seeds? It is called high yielding variety seeds. अब इससे क्या हुआ, लोगों ने जो था फार्मर्स ने कन्वेंशनल सीड की जगह, जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उनकी जगह हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स यूज करने शुरू कर दिए इन सिंस द ईयर 1965। तो उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ। तो लोगों ने HYV सीड यूज करना शुरू किया। दिस इज द फर्स्ट टेक्निकल रिफॉर्म। सेकेंड, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो एक और रिफॉर्म तो टेक्निकल रिफॉर्म एक ये भी था कि केमिकल फर्टिलाइजर के यूज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया ताकि जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। और इसी का केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा आज के तारीख में हमारे देश में यूज होता है। इन द ईयर 2017-18 लगभग 250 लाख टन से भी ज्यादा हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ था। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर के यूज पे बहुत ज्यादा जोर दिया था टेक्निकल रिफॉर्म में, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है उसको एक बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। आपको पता है जो इंसेक्ट्स और पेस्ट होते हैं वो फसलों को खराब कर दिया करते थे। तो गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई जिसको हम लोग कहते हैं 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए, ताकि वो इसको और ज्यादा प्रमोट कर सके, ताकि फार्मर्स को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड प्रोवाइड कर सके, ताकि जो उनकी जो फसलें थी उन्हें पेस्ट और इंसेक्ट से बचाया जा सके। we have is scientific farm management practices। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा फार्मर्स को ये एनकरेज किया गया कि वो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस अपनाएं फार्मिंग करते हुए। फॉर एग्जांपल अच्छी क्वालिटी के क्रॉप का सीड यूज करें, सॉइल को पहले प्रिपेयर करें उगाने के लिए, क्रॉप रोटेशन करें और फर्टिलाइजर्स का यूज करें। इसके लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, बहुत सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए थे। फॉर एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ताकि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके ना ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। सो व्हाट डज इट मीन कि जो हमारे जो फार्मर्स थे, ताकि वो अपने फार्म्स को, अपनी जो खेती थी उसको और ज्यादा मैकेनाइज कर सकें, इसलिए बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फार्मर्स की एजेंसीज और रीजनल रूरल बैंक्स को सेटअप किया गया था, ताकि फार्मर्स उससे लोन ले लें और अपने जो फार्म्स थे उन्हें मैकेनाइज कर सकें, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकें। सो दीज वर द पॉइंट्स रिगार्डिंग टेक्निकल रिफॉर्म्स। सो नाउ विल बी मूविंग टू नेक्स्ट रिफॉर्म विच इज लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए अब हम वो जान लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट,
सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि पहले जमींदारी सिस्टम थी जिसके अंदर गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक जमींदार हुआ करते थे जो कि इंटरमीडियरीज थे बिटवीन गवर्नमेंट एंड टेनेंट्स और फार्मर्स। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच से उन जमींदारों को हटा दिया। तो गवर्नमेंट ने जो जमींदारी सिस्टम था उसे अबॉलिश कर दिया। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट रेगुलेशन। इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये किया कि जितना रेंट लैंडलॉर्ड्स चार्ज किया करते थे फार्मर से, उस रेंट को रेगुलेट कर दिया। क्योंकि कई बार क्या था, लैंडलॉर्ड्स बहुत ज्यादा रेंट चार्ज कर लेते थे फार्मर से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये रूल इंट्रोड्यूस किया कि जितना क्रॉप की वैल्यू उस लैंड के ऊपर उगाई जा सकती है, उसके 1/3 वैल्यू से ज्यादा लैंडलॉर्ड्स फार्मर से रेंट चार्ज नहीं कर सकते। तो इससे भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कम हुआ फार्मर्स और टेनेंट्स का। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग होती है जो कि प्रोडक्टिविटी घटाती है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों के अंदर खेती की जमीन बटी होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो सारी जमीन थी लोगों की अलग अलग जगह पे छोटी छोटी जो जमीन थी उन्हें पहले मिलाया गया और उसके अंदर से जो जमीन थी उसे बांटा गया, ताकि जो अलग अलग जगह पे तो जमीन बटी हुई थी उसे एक साथ ही लोगों को दे सके। तो इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और 2004 तक हमारी लगभग 1600 से भी ज्यादा लाख हेक्टेयर्स की जो लैंड थी वो कंसोलिडेटेड होल्डिंग बना दी गई थी। उन्हें कंसोलिडेट करके बांट दिया गया था। स्कैटर्ड होल्डिंग को कंसोलिडेट करके बांट दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड होल्डिंग सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अब गवर्नमेंट ने एक और चीज की कि ताकि लैंड होल्डिंग में कि लोगों के पास बराबर लैंड रहे, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन रहे, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लैंड होल्डिंग सीलिंग बना दी, एक लिमिट बना दी। अगर जिन भी लोगों के पास, जिस भी किसान या लैंडलॉर्ड के पास इस लिमिट से ज्यादा अगर लैंड हुई तो वो जो ज्यादा लैंड है वो गरीब फार्मर्स के अंदर बांट दी जाएगी या गवर्नमेंट उसे अपने पास रख लेगी। तो फिर ये एक चीज किया ताकि डिस्ट्रीब्यूशन रहे ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो लैंड होल्डिंग के ऊपर एक लिमिट लगाई गई जिसे हम लोग कहते हैं सीलिंग, और जितना उससे ज्यादा यानी सरप्लस लैंड थी लोगों के पास उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया बिटवीन गवर्नमेंट एंड सम स्मॉल फार्मर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती है छोटे फार्मर्स के लिए। अब छोटे फार्मर्स उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब वो मार्केट में गए तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए सस्ते दामों पे इनपुट खरीद सकते हैं, फॉर एग्जांपल सीड्स एंड फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, और जो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो मिल के महंगे दामों में बेच सकते हैं, ताकि वो एक बार्गेनिंग पावर आ जाती है फार्मर्स के अंदर। वो बार्गेन करना उन्हें आने लग जाता है जब कोऑपरेटिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस की गई। तो नेक्स्ट वी हैव जनरल रिफॉर्म्स। सो इसके अंदर कुछ जनरल रिफॉर्म होंगे जो कि ना टेक्निकल में आते हैं ना लैंड रिफॉर्म्स में। तो अब हम इनको पढ़ लेते हैं कि जनरल रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए थे। द फर्स्ट पॉइंट इज इरिगेशन एक्सपेंशन। तो जो एरिया था अंडर इरिगेशन फैसिलिटी वाज इंक्रीज्ड। तो बहुत ज्यादा जो हमारा जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था हमने उसे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की। फॉर एग्जांपल इन 1951 ओनली 17% ऑफ लैंड वाज अंडर परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। जस्ट 17% जो लैंड थी वो परमानेंट मीन से इरिगेट होती थी, वेर एज जो रिसेंट टाइम्स है उसके अंदर ये जो परसेंट है अराउंड 50% पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज आया है कि पहले हमारे केवल 17% लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन आज मोर देन 50%, अराउंड 50% जो लैंड है उसके अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज आ गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि प्रॉब्लम क्या थी कि महाजन से वो लोग वो लेते थे लोन, लेकिन अब क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोल दी है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स खोल दिए हैं। तो इस वजह से जो ये भी एक जनरल रिफॉर्म है कि जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी ताकि वो उधार ले सकें आराम से कम इंटरेस्ट रेट पे। तो एट प्रेजेंट वी हैव अराउंड मोर देन 94,000 एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड मोर देन 700 एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हमने इंप्रूवमेंट किया है इसके अंदर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट में, ताकि फार्मर्स आराम से लोन उठा सकें, आराम से पैसा उधार ले सकें, ताकि वो अपने फार्म्स को मॉडर्नाइज कर सकें, सीड्स खरीद सकें अच्छे क्वालिटी के। इसलिए तो उनको उधार देने के लिए इतने सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने देश के अलग अलग भागों में रेगुलेटेड मार्केट्स ला दिए हैं। अब ये जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं इसे जो गवर्न करता है वो उसके लिए कमिटी अपॉइंट करता है गवर्नमेंट। तो ये जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो फार्मर्स हैं उन्हें टाइम पे उनकी फसलों का पेमेंट मिल जाए।
तो ये मार्केट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने देश के अलग अलग जगह पे, ताकि फार्मर्स इन्हें अपना अनाज बेच सकें। क्योंकि आपको पता है महाजन को उन्हें सस्ते दामों पे बेचना पड़ता था, तो गवर्नमेंट ने एक तो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट किया ताकि वो बैंक से और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले लें, और साथ में रेगुलेटेड मार्केट लाए ताकि जो फार्मर्स हैं उन्हें सस्ते दामों पे महाजन को ना बेचकर मार्केट में बेच सकें। और ये रेगुलेटेड मार्केट ताकि सही से काम करें अपना, इसके लिए गवर्नमेंट ने इनके लिए कमिटीज भी बना दी हैं ताकि आराम से फार्मर्स को टाइमली पेमेंट मिल जाए उनकी फसलों का। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। तो हम सबको पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना दी है और उस लिमिट से कम कोई भी फार्मर्स को पे नहीं कर सकता। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये फार्मर्स को ये अश्योर करती है कि उनका जो आउटपुट है वो अच्छे दामों पे मार्केट में बिक जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना दी कि इससे नीचे फार्मर्स का प्रोड्यूस नहीं बिकेगा, इससे ज्यादा महंगे दामों में बिकेगा। तो इसलिए भी फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा ये चीज रिफॉर्म साबित हुआ। नाउ नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीरियन रिफॉर्म्स। जो ये हमने एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म्स लाए, इससे आखिर क्या क्या अचीवमेंट आई हमारे पास, क्या क्या इससे फायदा हुआ। तो जो एग्रीरियन रिफॉर्म्स थे, इनका इतना ज्यादा सब्सटैंशियल इम्पैक्ट था एग्रीकल्चर पे कि पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट ग्रीन रेवोल्यूशन। इट वाज कंसिडर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो हमने रिफॉर्म्स लाए थे, गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, इसका इतना अच्छा इंपैक्ट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया एग्रीकल्चर सेक्टर में कि इट वाज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में एक रेवोल्यूशन साबित हुआ। अब ये जो रेवोल्यूशन है वो दो फेजेस में हुआ। एक तो हुआ मिड 1960s से 1970s के बीच, और एक हुआ मिड 70s से मिड 80s के बीच। तो ये दो फेजेस में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि दो फेजेस में हमारे एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए। ओके, तो अब ये जो एग्रेरियन रिफॉर्म यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इससे क्या क्या अचीवमेंट हुई? नंबर 1, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जो फसलों की जो प्रोडक्टिविटी थी यानी कि आउटपुट पर हेक्टेयर, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। फॉर एग्जांपल वीट के केस में, इन केस ऑफ वीट, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी इन 1951 वाज जस्ट 660 केजी पर हेक्टेयर। लेकिन आज इन द ईयर 2018-19 रिसेंट ईयर्स में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो है 3400 केजी इन द ईयर 2018-19। तो आप देख सकते हैं वीट के केस में कितना इंप्रूवमेंट आया है। 1951 में तो हमारा केवल 660 केजी उगता था पर हेक्टेयर में, लेकिन रिसेंट ईयर्स में यानी 2018-19 में हमारा 3400 केजीज जो है उग सकता है वीट। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंक्रीज आया है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटैंशियल राइज इन एकरेज। एकरेज मतलब होता है गाइस एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब कि कितना जो हमारा इंडिया का एरिया है उसके ऊपर खेती की जाती है। तो जो हमारा 1951 का जो ईयर था, ईयर एंडिंग 1951, उसमें हमारा केवल 13 करोड़ हेक्टेयर हमारा अंडर एग्रीकल्चर था। Whereas in the recent year हमारा जो ये है एकरेज यानी कि एरिया अंडर कल्टीवेशन, वो है 19 करोड़ हेक्टेयर्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन हमारा बढ़ा है, फ्रॉम 13 करोड़ इन 1951 टू 19 करोड़ इन द रिसेंट ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। हम जानते हैं पहले जो फार्मर्स थे वो केवल खुद के कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स उगाया करते थे, लेकिन अब जो फार्मर्स हैं उनको कमर्शियल आउटलुक मिला है कि अब जो फार्मर्स हैं वो खेती बेचने के लिए करते हैं, अब वो खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं करते। इस वजह से जो फार्मर्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और साथ में उनका इनकम लेवल है वो बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। पहले जो हमारे फार्मर्स का आउटलुक था वो बहुत ही ट्रेडिशनल था, लेकिन अब फार्मर्स के आउटलुक के अंदर एक चेंज आया है, वो साइंटिफिक मेथड्स को अब यूज करने लग गए हैं। ना ही केवल साइंटिफिक मेथड्स बल्कि अब वो सब्सिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ भी आने लग गए हैं। इसका मतलब ये है कि एक फार्मर्स की जो नजरिया था उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। नेक्स्ट पॉइंट इज self sufficiency in food grain production. For example guys, in 1965 we used to import grain from USA. लेकिन आज आफ्टर एग्रेरियन रिफॉर्म्स वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री फॉर ग्रेन्स। वी आर प्रोड्यूसिंग जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रेन टू बी फेड टू आवर ओन पीपल।
तो हम लोगों ने सेल्फ सफिशिएंसी पा ली है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। अब हम अपनी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसे खुद उगाकर खिला सकते हैं, इतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है। So after completing the achievements of agrarian reforms, let's move to limitations of agrarian reforms. तो guys जो हमारा even after introducing some agrarian reforms, important agrarian reforms, we are still lagging behind many developed countries in terms of productivity and production. तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी आज भी हमसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो हमारी एग्रेरियन रिफॉर्म्स की क्या क्या खामियां रह गई वो हम अब पढ़ने वाले हैं इन पॉइंट्स में। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड क्रॉप्स। तो हमारा जो ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स था वो केवल कुछ क्रॉप्स के पे ही लिमिटेड था। जो HYV सीड्स थे वो केवल मेनली वीट एंड राइस के लिए ही थे। बाकी जो क्रॉप्स थी जैसे कॉटन, जूट, टी, ये सारी जो फसलें थी छूट गई थी। केवल मेजरली 2 ही फसलों के ऊपर काम हुआ था। सेकेंड पॉइंट इज अनइवन स्प्रेड। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसका असर केवल कुछ स्टेट्स में दिखाई दिया, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जबकि बहुत सारा इलाका रह गया था। फॉर एग्जाम्पल यूपी रह गया था, ईस्टर्न यूपी, हमारा उड़ीसा रह गया था, हमारा मध्य प्रदेश रह गया था, और हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे इलाके हमारे रह गए थे। तो इसलिए इसका अनइवन स्प्रेड था, ये भी एक लिमिटेशन थी। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। तो हमारी जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा अमीर नहीं है कि वो इन सारे एग्रीरियन रिफॉर्म्स को अफोर्ड कर सके। जो HYV टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करने के लिए जो इनपुट्स लगते हैं उन्हें अफोर्ड कर सके। तो इसलिए भी केवल लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन को ही इन एग्रीरियन रिफॉर्म्स का फायदा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डिवाइड। अब क्योंकि कुछ ही पॉपुलेशन को, कुछ ही पोर्शन ऑफ फार्मर्स की पॉपुलेशन को फायदा हुआ एग्रीरियन रिफॉर्म्स का, इसलिए जो बहुत छोटे फार्मर्स थे और बड़े फार्मर्स थे उनके बीच में बहुत इकोनॉमिक डिवाइड आ गया कि जो अमीर फार्मर्स थे जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स को अफोर्ड कर सकते थे वो और अमीर हो गए, और जो कि नहीं कर सकते थे वो गरीब ही रह गए। तो वी कैन स्टेट इन कंक्लूजन दैट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। ये सिग्निफिकेंट तो है इसका असर, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। Next, we'll be asking a question: does India need another revolution? So we'll say obviously yes, certainly yes. Why? Because our productivity is low compared to other countries. Next, there is still presence of uncertainty in agriculture because आज भी बहुत सारा इलाका हमारा रेनफॉल डिपेंडेंट है। Next is food grain stock is uncertain, and the next point is loan waivers are becoming recurring features, कि जो लोन लेते हैं फार्मर्स वो लोन की भरपाई नहीं कर पाते, तो वो भी एक recurring फीचर बनता जा रहा है, वो भी बहुत हो रहा है। सो इसी के साथ हम ये वाला लेक्चर अपना खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज। इफ यू वांट दिस पावर पॉइंट स्लाइड देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @droid_gk। हम उसके ऊपर ये जो पावर पॉइंट स्लाइड है एज अ पोस्ट अपलोड कर देंगे, तो आप इसका एक्सेस वहां से ले सकते हैं। थैंक यू।